is this? Motion. 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 Very good. Very good. So, what do you think about motion? I want to know what is motion according to you. Right definition क्या होगी मैं बताऊंगा बाद में. First of all, what is motion according to you? आप जानते हो तो अपना माइक को अनम्यूट करें और बताएं. Sir, anything change his place according the period of time. Anything change? Change his place according the period of time. Okay, ठीक. Okay. हेमंत सिंह रघुवंशी. Okay. Next one. ये बेटा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोले. जो आपको लगता है वो बोलो. What is motion? Yeah, what do you think about motion? Sir, a body when changes its Yeah, Movement. movement. ना movement तो is just a same Sir? word of motion. Sir, Yes. sir, the body can change continuously, can change its position. Hmm. Okay. Sir, Change in position of an object with yes, sir. Yes. Tell me. So the change in position of an object with respect to a particular point or time. Okay. Okay. sir. So now, let's start. Good. No doubt. काफी कुछ अच्छा बताया आप लोगों ने. बाकी मैं ठीक करता हूँ. Motion means what? Look my hand. It is in rest or motion? motion. Rest. Sir, rest. Now. Motion. Motion. Now. Sir, with respect to what? Okay. What now? In rest or motion? Motion. Rest. कैसे बोल रहे हो आप कि ये मोशन में है? ये मोशन और रेस्ट Rest. कैसे बोल दिया? Because in this time the positions. Okay. An object is said to be in this state of motion if it continuously changes its position with respect to its surroundings. Look again. इस वक्त आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर? Sir, board. देखो बेटा मेरे हाथ थक जाएंगे ऐसे किए. आपको मैं बता रहा हूँ. आपको दिखाई दे रहा होगा P लिखा हुआ है. P, राइट? फिर लिखा हुआ है मोशन. ओके. और उसके नीचे मेरे हैंड है दोनों. ओके. अब मुझे बताओ कि हाथों का मूवमेंट कैसा हो रहा है? ये मोशन के पास हो रहा है कि मोशन से दूर जा रहा है? It is away from the motion or towards the motion? Away. Sir, away. Away. Now. From the motion. Now. Towards the motion. Towards. Okay. Now. Sir, going away. Away. Now. Away. Okay. Actually, in this example, this motion word is a key point. It is a key point. इस ध्यान देना. ये देखो. It is in rest or motion? In rest. Okay. Yes, rest. Why? Because my palm does not change the position with respect to motion. Okay? That is why we can say that it is in rest. लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, so what happened? It is away from the motion. Means this word. So that is called motion. So remember always, who will decide कि you are in motion or rest?
यू आर इन मोशन और रेस्ट। ध्यान से सुनना। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई गिव यू वन एग्जांपल। मैंने 2 लोग छांटे हैं इसमें से। नंबर 1 रामा नीघरा और सेकंड 1 हेमंत सिंह रघुवंशी एंड थर्ड 1 पूजित श्रीवास्तव। तीनों ही अपने अपने माइक को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। यस सर। ओके, अब सुनना। रामा, ये जो रामा जो लड़की है, ये जो रोड के किनारे खड़ी हुई है, सी सिटिंग ऑन द साइड वे ऑफ रोड। और ये दिस इज द बस, और इस बस में 2 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ है हेमंत एंड लास्ट पर पीछे भी बैठा हुआ है पूजित। फर्स्ट सीट पर हेमंत, सेकंड लास्ट सीट पर पूजित। एंड रामा रोड के किनारे खड़ी हुई है। ओके, सीन इज दैट this bus is moving from in front of Rama. ये बस रामा के आगे से निकल रही है। And I call 2 person, first Rama and second Pujit, सेम टाइम पर एक साथ फोन लगाऊंगा और मैं पूछूंगा दोनों से कि बताओ हेमंत रेस्ट में है कि मोशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल रामा। Yes, sir. Sir, according to me, sir, Hemant will be in motion. And आप अपनी बात करो केवल। sir, so Hemant is in motion. That's all. Okay, बात खत्म। Yes, Pujit. Sir, Hemant is in rest. Okay, माइक को बंद कर दो, चाहो अनम्यूट कर दो, म्यूट कर लीजिएगा। अब देखो इसमें से अब मुझे बताओ कि कौन झूठ बोल रहा है। 1 is lying. Either रामा और सेकंड पूजित, कोई एक झूठा है इनमें से। बताओ कौन है। सर पूजित। नकुल बताओ। सर इनमें से कोई नहीं है सर। सर इनमें से कोई झूठा नहीं है सर। ऐसा होता है कि मतलब कि वो एक कह रहा है कि मैं चल रहा हूँ, एक कह रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा होता है। सर रामा झूठी है सर, इसमें मैं रेस्ट में हूँ, मेरी बॉडी। झूठा नहीं, क्योंकि सर दोनों के फ्रेम्स अलग है। अब सही अब बात सामने है। सर कोई झूठा नहीं है। बिल्कुल सही दोनों का बात है। फ्रेम्स अलग है। रामा जवाब दो। फ्रेम्स अलग है। रामा, हेमंत बोल रहा है कि you are lying. No, sir, I am right because, sir, according to me, so the bus is moving and Hemant is inside that. So मुश्किल मत बोल। नो, ये तो उसको समझा। yes, sir. हाँ, उसको समझा। Sir, I am right. You are lying. No, sir, I am right. Okay. Yes, निलय मित्तल। सर दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि सर दोनों का कंपैरिजन फ्रेम्स ही अलग है सर। एक का सर मूविंग बेटा ये कैसे पॉसिबल है बेटा, कि बताओ कैसे पॉसिबल है। एक कह रहा है कि वो चल रहा है, एक बोल रहा है कि वो झूठ बैठा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है। सर एक फ्रेम सर स्टिल है सर, जबकि दूसरा अगर फ्रेम ले तो सर वो भी मूविंग है, इसलिए उसको तो सेम देखो, मतलब एक ही पोजीशन पे लिखेगा। ओके, अब बेटा ये समझो बात को। both are correct, both are very correct, no doubt, both are very correct. लेकिन दोनों ही सही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। They are contradict to each other, opposite to each other. क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हेड और टेल, वैसे होता है रेस्ट और मोशन। रेस्ट का अपोजिट होता है मोशन, और मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट। दैट मीन्स, तो ये कोई एक झूठ बोल रहा है, नो, बोथ आर राइट, बोथ आर परफेक्टली राइट। बस इट्स अ डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द न्यू वर्ड इज कम्स इन आवर फिजिक्स, इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि रामा ने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू मी, उसने ये कहा है, देखो बेटा
यदि वो ये बोलती है रमा कि हेमंत इज मूविंग, इट मे बी रॉन्ग स्टेटमेंट, इट मे बी कह रहा हूं बेटा मैं, नॉट परफेक्टली, इट मे बी रॉन्ग स्टेटमेंट, बट इफ सी सेज सर according to me Hemant is moving or in motion, so she is perfectly right. At the same time Pujit also said, sir, according to me he is in rest, so both are correct. लेकिन ये दोनों करेक्ट क्यों है पता है बेटा आपको? क्योंकि ये दोनों अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग बोलते हैं सिंपल में, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों आप अभी जहां बैठे हो तो यू आर इन रेस्ट और इन मोशन? Rest. रॉन्ग। अभी मेरे पास एक फोन आया था चंद्रमा से, मून से फोन आया था, उसने मुझे बताया कि वी आर ऑल आर मूविंग। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, बिकॉज अर्थ इज Earth is रोटेटिंग। rotating. यस, Sir, Earth is rotating. not only rotate but also in circular motion with around sun. So earth has two motion, first is rotational motion and number 2 is circular motion. Revolution. According to earth we are in rest. यदि मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम इन रेस्ट, दैट मीन्स मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। क्योंकि यदि हम अर्थ के बाहर चले जाएं, मून पे पहुंच जाए, मार्स पे पहुंच जाए, जुपिटर पे पहुंच जाए, तो मालूम पड़ेगा कि अब हम मोशन में हैं, बिकॉज अर्थ इज आल्सो मोशन। सो द मेन थिंग ऑफ दिस वर्ड इज हु विल डिसाइड इट इज मोशन, हु विल डिसाइड इट इज रेस्ट। ये डिसाइड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। So that is why motion is not a perfect word. Rest is not a perfect word. It is a relative word. जैसे कि यहाँ पे क्या था कि हेमंत पूजित के हिसाब से रेस्ट में था, लेकिन इसके हिसाब से रेस्ट में नहीं था। अब मैं फिर से पूछना चाहूंगा रामा से कि रामा तुमने ये कैसे कह दिया कि सर हेमंत इज इन मोशन? Rama. Sir, according to me, sir, Hemant's position was changing. Yes, very nice, very good beta, perfect answer. Rama ने इसलिए कहा because Hemant changing its position with respect to Rama. लेकिन पूजित ने इसे क्यों कहा कि रेस्ट में है? because there is no change in position with respect to पूजित। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पहले था वही अभी भी है। भाई बस में बैठे हुए हैं तो बस में एक बस आगे, एक सीट आगे एक पीछे है, तो उसमें क्या चेंज आएगा? सो इसके हिसाब से ये रेस्ट में था, इसके हिसाब से ये मोशन में था। बड़ा समझ में आ गया? मोशन मीन्स, अब उसमें लिखाऊंगा भी आपको कि व्हाट इज मोशन। मोशन मीन्स व्हेनेवर एनीथिंग चेंज itself with respect to surroundings, suppose this is a pen, so if it is changed the position, so now it is in motion। आप देख सकते हो बेटा क्या हो रहा है, ये इसकी पोजीशन आसपास के हिसाब से लगातार बदल रही है। सराउंडिंग मीन्स होता है जो आसपास सब कुछ है, जो कुछ भी है, मतलब इस पेन के अलावा जो कुछ भी आसपास है, इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, गॉट इट? समझ में आया व्हाट इज मोशन? ओके, सो लिखिए अब नोट डाउन मोशन।
a body change its position with respect to surroundings is known as motion. Or if it is not, then we said to be it is in rest. Then we said to be it is in rest. Line change. Motion is of two types. Number one, uniform motion, and number two, non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. First, already uniform motion. Uniform motion. यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? सर एक जैसा। ओके, मतलब जो शुरू से हो रहा है वही लास्ट तक होता रहे, सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। ठीक, मतलब यदि जो चेंज जितना हो रहा है उतना चेंज बना रहे तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो लिखिएगा, इसमें देखिए, इफ अ बॉडी covers equal distances in equal intervals of time, if body covers equal distances in equal interval of times, then we said to be uniform motion. Number two, non-uniform motion. Non-uniform motion. इसमें बेटा क्या हो जाएगा, या तो टाइम चेंज होगा या फिर डिस्टेंस. If distance is same, so time will be different, or if time is same, then distance will be different. तो लिखिएगा, if unequal distances covers in equal interval of times, or covers same distances in unequal intervals of time.
occurs in an unequal intervals of time is known as non-uniform motion. Okay. अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मोशन हो गया, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्वेश्चन ये है, ये बेटा मोशन में है। यस सर। ओके, अब मुझे बताइए, मेरी एक फिंगर है और एक पेन है, तो इनमें कुछ अंतर है? क्या हो रहा है अंतर? बताइए क्या अंतर आ रहा सर है? पेन साथ में नहीं जा रहे हैं। हाँ सर मार्कर दोनों- और जो ओके, सर दोनों इक्वली में चल रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। अब ये देखो, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा ये बताना मुझे, ये इसमें, इस वाले में और इसमें क्या अंतर है? सर एक की स्पीड तेज है। इसकी ये स्पीड वर्ड कहाँ से आ गया? ये मैं तो अभी बोला ही नहीं। ये स्पीड वर्ड कहाँ से आ गया? सर वो अनइक्वल देखो टाइम अब यहाँ पर क्वेश्चन बता यही है कि ये भी मोशन है और ये भी मोशन, राइट? लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है। वो चेंज क्या है? सर स्पीड। नो, अब उसमें तो स्पीड आपको नहीं पता अभी, पर आपको नहीं पता तो यस आप ये बोलेंगे सर, आप ये बोलेंगे कि सर दोनों मोशन में हैं, बट जो सेकंड वाला जो केस है ना, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट चेंजिंग इटसेल्फ वेरी क्विकली, राइट? वेरी क्विकली, ये जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है और ये धीमे धीमे कर रहा है, राइट? ये मतलब है इसका। अभी स्पीड की हम बात नहीं करते, स्पीड तो हम बाद में पहुंचेंगे। तो डिफरेंस क्या है? दिस इज मोशन और दिस इज ऑल्सो मोशन, राइट? लेकिन सेकंड वाला जो मोशन है वो कुछ फास्ट लग रहा है। तो आपने इसको फास्ट क्यों कहा? बिकॉज इट्स चेंजिंग इटसेल्फ वेरी क्विकली, सो उसे हम कहते हैं फास्ट मोशन, नॉट स्पीड, नॉट स्पीड। अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज स्लो मोशन और दिस इज फास्ट मोशन, राइट? नॉट स्पीड। तो क्वेश्चन फिर ये वहां पे बात आई कि इसके लिए हम क्या वर्ड दें, तब वो वर्ड आया स्पीड। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीड? हु विल डिसाइड कि सर ये स्पीड फास्ट है, ये स्पीड कम है? तब मैंने कहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें अंतर कहाँ आएगा स्पीड में? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंसेस with respect to time, या उल्टा बोल दो कि the change the position with respect to time is called speed। बच्चों ध्यान से पढ़ो उसको, मेरी डेफिनेशन को बहुत बड़ा अंतर है। उसमें मैंने लिखवाया है कि whenever anything change itself with respect to surrounding, so it is known as motion। और अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आई बेटा आपको? जब टाइम इसके बीच में आएगा, ये देखो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तेजी मतलब टाइमिंग, टाइमिंग है, टाइम मतलब, तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं उसे हम कहते हैं स्पीड,
और जब सराउंडिंग के हिसाब से बताते हैं उसको बोलते हैं मोशन। 99% लोग मोशन और स्पीड को एक ही मान लेते हैं, इवन देन टीचर ऑल्सो। सो रिमेंबर, मोशन अलग चीज है, स्पीड और वेलोसिटी अलग चीज है। हाँ, जनरल आप कह सकते हैं, लेकिन यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो आपके लिए मोशन और स्पीड में बहुत अंतर है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट स्पीड इज द मेजरमेंट ऑफ मोशन। बड़ा बात समझ आ रही है आपको? स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग, स्पीड वेलोसिटी सेम थिंग, because there is only one difference, that is direction. Okay, so speed or velocity is the measurement of motion. Okay, समझ में आया आपको? स्पीड से क्या मालूम पड़ता है, वेलोसिटी से क्या मालूम पड़ता है कि इसका मोशन को हम कैसे नापेंगे। बिकॉज फिजिक्स की एक खास क्वालिटी होती है, फिजिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। जिस चीज को हम नाप नहीं सकते उस चीज को हम फिजिक्स में कहते नहीं हैं। फिजिक्स में केवल वही चीजें आती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। दे आर कम्स इन फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको नहीं नाप सकते वो इसमें नहीं आते हैं। इसीलिए फिजिक्स की जो नई डेफिनेशन वो ये होती है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। दैट मीन्स जिसको हम नाप नहीं सकते वो फिजिक्स में नहीं आएगा। तो किसको नहीं नाप सकते आप? कोई तो बोलो, खामोशी क्यों है? किसको आप नाप सकते हो और किसको नहीं नाप सकते? आपको कोई पता है, कोई आइडिया? रामा? सर सॉलिड्स को नाप सकते हैं। कोई भी बोल सकता है जिसको आइडिया हो। सर सॉलिड्स सॉलिड्स सॉलिड को तो नाप सकते हैं। और कोई? Sir, we cannot measure knowledge. नॉलेज? अभी मैं तेरा टेस्ट लेने वाला हूँ, है ना, तो उसमें तेरी नॉलेज सामने जाएगी। ठीक है क्या? Yes, sir. फिर सर स्पेस और बताओ। सर स्पीड आर स्केलर क्वांटिटी। नहीं, अरे मैं तो आप तो कहीं और ही पहुंच गए। मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस किस को नहीं नाप सकते। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ। मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ कभी कभी कि हम लोग माँ की ममता को नहीं नाप सकते, बाप की बापता भी नहीं नापी जा सकती, भाई का प्रेम भी नहीं नाप सकते। यदि मैं ये कहूं, तो मुझसे आप ये कहो कि मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूं, निलय, ओपन योर माइंड। मैंने एक स्टेटमेंट दी, तुम ये बोलो कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। बोलो, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कितना? सर ये तो अनकाउंटेबल है सर। कितना? सर फिर से मेजर नहीं किया जा सकता। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 मीटर? कोई आइडिया है? नहीं है। ओके, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, दे आर नॉट कम्स इन फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा कि जिस चीज को हम नाप नहीं सकते वो फिजिक्स के अंदर नहीं आता है। तो मोशन जो वर्ड था ना, मोशन, वो ये तो कहता ऐसे मोशन तो है, मगर ये कितना है, कैसा है, हैवी कि नहीं है, ये किस तरह का मोशन हो रहा है, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आप ये कह सकते हो, मोशन और स्पीड नॉट अ सेम थिंग, मोशन इज अ डिफरेंट थिंग,
speed or velocity is different thing. Okay, one thing remember always, only one thing remember, that is speed and velocity is the measurement of motion. मोशन को नापने का, मेजरमेंट करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है. तो आप लिखिए, आपका हेडिंग होगा नेक्स्ट स्पीड. स्पीड. सो आप इसको लिखिए. If a body cover distance in given interval of time, is known as speed. लिखिएगा. स्पीड इज इक्वल टू, इसका वो लिखिए फार्मूला, लेंथ ऑफ पाथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. स्पीड होती है लेंथ ऑफ पाथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. ये इसका बड़ा फार्मूला हो गया. आगे देखो, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. क्या लिखना बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब सेकंड लिखिए, वेलोसिटी. लिखिए इसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, the rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. That is, velocity होता है displacement upon time interval. बच्चों, अक्सर बुक में लिखा होता है टाइम केवल. सो टाइम एक्चुअली इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड. राइट वर्ड इज टाइम इंटरवल. ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टाइम इंटरवल. इट्स यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. Its unit is also meter per second. And it is a vector quantity. Okay, बच्चों. So this is only speed and velocity. अभी इसमें हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो हम लोग जब नेक्स्ट मेरी क्लास होगी तो मैं उसको आपको आगे बढ़ाऊंगा. स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, हाउ टू एक्सप्लेन स्पीड एंड वेलोसिटी
इसको ये स्पीड कितनी तरीके की होती है, वेलोसिटी कितनी तरीके की होती है, व्हाट आर द चेंजेस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी तो हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, over to Nagin sir. Yes, बच्चों. Students. सर एक बार वेलोसिटी को बता दीजिए. हाँ, वेलोसिटी का बोलते हैं, बस अंतर ये है, यहाँ होता है डिस्टेंस, यहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. बच्चों आपको सर ने पढ़ा दिया होगा पहले कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज आल्सो vector quantity. So it is the basic difference between speed and velocity. जो difference distance और displacement में है, the same difference between speed and velocity also. Okay, next. Next out, if